पीछे आ जाए, ज़रा पीछे आ जाए। Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, may I have your permission to commence the proceedings of the oath-taking ceremony of the Chief Justice of Pakistan? Please do. Now I request Qari Dr. Ikramul Haq for tilawat-e-Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. इरशाद बारी ताला है, अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों को पहुंचा दो, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगो तो अदल व इंसाफ से फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। ए ईमान वालो,
अल्लाह ताला का हुक्म मानो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो, और तुम में जो साहिब हुकूमत है उनका भी कहना मानो। फिर अगर तुम किसी बात में झगड़ पड़ो तो उस इख्तिलाफ को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ। अगर तुम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और इसका अंजाम बहुत अच्छा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Now the notification of the appointment of the Chief Justice of Pakistan will be read. While the Government of Pakistan, Ministry of Law and Justice notification dated 2nd January 2019 and in exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable President of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa as Chief Justice of Pakistan with effect from today, the 18th January 2019. Now, I request the Honorable President of Pakistan to administer the oath of office to Mr. Justice Asif Khan Khosa as Chief Justice of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances, I will do right to all manner of people. According to law, without fear or favor, affection or ill will. According to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. Sir, may I have your permission to conclude the proceedings of the oath-taking ceremony? The ceremony is hereby concluded. Now I request the honorable guest to join us for refreshments.
यहाँ पर आपको नाज़रीन अहम खबर से आगाह करते चलें कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई है और हाजिर सर्विस, रिटायर्ड जजेस और वफाकी काबीना, अरकान पार्लियामेंट समेत आला सिविल अस्करी हुक्काम ने तमाम ने ही जो है इस हलफ बर्दारी की तकरीब में जो है वो शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस का आज हलफ भी लिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से जो है वो हलफ उठा चुके हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई है और हाजिर सर्विस, रिटायर्ड जजेस, वफाकी काबीना, अरकान पार्लियामेंट समेत आला और सिविल अस्करी हुक्काम ने जो है शिरकत की है। और हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल कारी इकरामुल हक ने तलावत कुरान पाक से जो है वो शुरुआत की है और उसके बाद साथ साथ जैसे कि हम बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे थे कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, वज़ीर कानून फ़रूक नसीम, वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद अली ख़ान, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, गवर्नर कराची इमरान इस्माइल और अली ज़ैदी और दीगर भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बताते चलें कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ उठा लिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की ज़िंदगी के हवाले से आपको बताते चलें कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपनी तालीमी काबिलियत और सबसे ज़्यादा फैसले तहरीर के लिए शोहरत रखते हैं। उन्होंने 1969 में मैट्रिक के इम्तहान में मुल्तान बोर्ड से 5वीं, जबकि 1971 में इंटरमीडिएट में लाहौर बोर्ड और 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पहली पोजीशन हासिल की। इसी यूनिवर्सिटी से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1975 में मास्टर की डिग्री भी हासिल की। इसी पर मज़ीद जो है गुफ्तगू करेंगे सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब से। नज़ीर लगारी साहब, इससे कबल अगर देखा जाए चीफ जस्टिस साकिब निसार जो कि अब इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, उन्होंने बहुत फैसले भी किए, बहुत फ्रंट लाइन पर वो आके जो है फैसले करते रहे हैं। अब आप फ्यूचर में जस्टिस आसिफ सईद खोसा को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिकेशंस दे दिए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जो हैं वो अदालती फ़ालियत को इतना दराज नहीं करेंगे कि वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात इस्तेमाल करने लगें या पार्लियामेंट के अख्तियारात इस्तेमाल करने लगें, वो ऐसा नहीं करेंगे और वो अपने इदारे के दायरे कार में रहेंगे। उन्होंने एक अच्छी तजवीज़ दी है कि इंस्टीट्यूशंस के माबैन जो है डायलॉग होनी चाहिए और एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि पाकिस्तान के मसाइल के बारे में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अलावा जो दीगर इदारे हैं वो मिलकर बैठें और बैठकर पाकिस्तान के मसाइल के बारे में सोचें। वो इस तरह की जुडिशल एक्टिविज्म नहीं करेंगे जिससे जो है उस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जो है दीवार से लगा दिया जाए और उसको काम करने का मौका ना मिले और छोटे छोटे या बड़े बड़े मामलात को डायरेक्ट अदालत अपने हाथ में ले ले। सिंध में जो है बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक वाटर कमीशन जो है वही चला रहा है सिंध की हुकूमत को। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि पंजाब में जो है वो अदालती फ़ालियत जो है वो बड़ी हद तक जो है मुदाखलत की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे मामलात जो हैं इस पर मेरा नहीं ख्याल है कि जस्टिस सरदार आसिफ सईद खान खोसा जो है वो उस तरफ को जाएंगे। वो एक बहुत बेहतरीन जज हैं और उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है। उनके वालिद एक बड़े वकील थे फैज़ मोहम्मद खान खोसा और डेरा गाजी खान के जो नामवर वकला को दुनिया अब भी याद करती है उनमें वो शामिल हैं। उनके साहबजादे के तौर पर वो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में और एक जज के तौर पर और एक ऑनरेबल जज के तौर पर अपने मनसब पर रहते हुए उस पूरे डोमेन को इस्तेमाल करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में है। और वो 184 का शिक 3 का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो पामाल कर रहा है आइन के आर्टिकल 10A को। तो इन दिनों आर्टिकल 10A जो है वो रौंदा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो एक तरफ रखकर जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। मेरा ख्याल ये है कि अब इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि आर्टिकल 10A जो है उसकी हुर्मत और उसका बाकी रहना, आपको हर आदमी को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देना है और फेयर ट्रायल देना है। फेयर ट्रायल हर आदमी का इस मुल्क में जो भी शख्स रहता है उसका हक है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए
और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बड़े बड़े या छोटे छोटे मामला को अगर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त अपने हाथ में ले लेती है तो जो नीचे की जुडिशरी होती है वो इससे सहम जाती है और वो देख लेती है और माइंड पड़ती है कि जी सुपीरियर जुडिशरी क्या सोच रही है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं, तो उसके मुताबिक सोच के मुताबिक वो फैसले करने लगती है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें पैदा होती हैं और इस तरह होता रहा है। बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें ट्रायल हो चुका है और ट्रायल के बाद अपील लेवल पर जाकर फिर सो मोटो लिया जाता है और वो सो मोटो जो है वो सारे के सारे मामला को एक तरफ कर देता है। मेरा ख्याल है कि सुपीरियर जुडिशरी को ये जरूर ख्याल करना चाहिए, अगर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है और हाई कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन हो गया है तो फिर ऊपर इंतजार किया जाए कि कोई फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए, डायरेक्ट वहां से सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले, या इवन जो डिस्ट्रिक्ट सेशन के अदालतों के मामला को अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेगी तो फिर इस पर किसी न किसी फरीक का सहम जाना या इस बात का ख्याल करना कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये बात जरूर पेश नजर रहेगी। ये बात लेकिन नजीर साहब कोशिश तो यही की जाती है कि केसेस को जो है जल्द से जल्द निपटाया जाए, तभी लिए जाते हैं सो मोटो नोटिस, लेकिन केसेस की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुंतज़िर है कि अब ये केसेस जो है निपटाए जा सकें। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी जल्दी जो है ये काम का सिलसिला जो है जो बहुत लोड और बहुत बर्डन है ये कम हो सकेगा? इसका तरीकाकार तो ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, इसलिए कि जजेस के कम होने की वजह से केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। असल बात यह है कि जब केसेस पेंडिंग में पड़े होते हैं तो सारा काम केसेस को निपटाने पर होना चाहिए, ये नहीं कि दीगर मामलात को हाथ ले लिया जाए, एग्जीक्यूटिव के मामलात को अपने हाथ में ले लिया जाए और गवर्निंग के मामला जो है वो अपने हाथ में लें। तो जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके पास केसेस की बहुतायत है। अगर 19-20 लाख मौजूद हैं केसेस, तो उसके बाद अब अगर वो दीगर मामलात पर भी, एग्जीक्यूटिव के मामलात पर भी जाती है तो एग्जीक्यूटिव के मामलात को देखने के लिए बहुत सी चीजें और मौजूद हैं। खुद पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट को फारियत करनी चाहिए और उसके अलावा जो है जो इंसाफ के इदारे उनको फारियत करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने असल काम से कि इंसाफ मिले और लोगों को जो है जो मुकदमात हैं उनकी तादाद कम हो और लोगों को बरवक्त इंसाफ मिले, उनको जारी रखना चाहिए। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस साकिब निसार ने अदालती फआलियत के जरिए एग्जीक्यूटिव के मामलात को अपने हाथ में लिया या लेने की कोशिश की, तो वो मेरे ख्याल में आगे जाकर ऐसा नहीं हो सकेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का जो विजन है, जो उनकी विजडम है, वो इसका तकाजा करेगी कि वो ऐसे मामलात में अपने आप को अलग रखें और एग्जीक्यूटिव के मामलात और पार्लियामेंट के मामलात जो हैं वो अपने मामलात को खुद निपटाएं और ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में ना आए। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मुतादिद बारी इस तरह से देखा जाता है कि टीवी पे कोई ख़बर नशर हुई, फिर वो ख़बर मुसलसल चलती रही, तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस की जानिब से सो मोटो नोटिस लिया जाता है। अब गरीब गुरबा की अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और अगर टीवी किसी एजेंडे के तहत ऐसा कर रहा हो, अगर जो है मीडिया किसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा हो, तो क्या उस एजेंडे को फॉलो करने के लिए अदालत का काम ये है कि वो उस मामले को ले ले? हमारे यहाँ कितना बलूगत है हमारे मीडिया की। मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मीडिया का आदमी हूँ। मीडिया ने जितने जुल्म और सितम किए हैं, जितने लोगों को बर्बाद किया है, हम उसका हिसाब भी तो लेंगे ना, उसका हिसाब भी तो करेंगे कि झूठी खबरें चलाई गई, बेबुनियाद खबरें चलाई गई और मीडिया ही चलाता रहा है और मासूम लोगों को जो है वो दीवार से लगाता रहा है। एक शख्स ने कत्ल नहीं किया, फर्ज करते हैं हम, एक शख्स ने कत्ल नहीं किया और मीडिया उठाकर एक बिल्कुल हाइप क्रिएट कर देता है, कत्ल हो गया, फुला ने किया, वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो मामला चला गया लोअर कोर्ट में, चलते हुए वो हाई कोर्ट में पहुंचा, फिर हाइप हो गया, फिर नया हाइप आ गया। अगर फैसला एक तरफ हो गया है तो फिर मीडिया ने हाइप शुरू कर दी, कातिल को बचा लिया गया, कातिल को बचा लिया गया। भाई ये मामला ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, एक कोर्ट एक फैसला कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। मीडिया के हाइप क्रिएट करने से जो तबाही आती है उसको कौन फेस करेगा? उसको सोसाइटी बर्दाश्त कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को भी लॉजिक से, मंतक से, कानून से जो है काम करना चाहिए। मैं मेरे विजडम पर इतना, मेरे अपनी अकल तक मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं जज नहीं बन सकता हूँ। यहाँ मीडिया ये चाहता है कि FIR दर्ज कराए,
फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट भी खुद करे, फिर उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन भी खुद करे, वो फिर उसके बाद ट्रायल भी खुद करे, वो फैसला भी खुद सुनाए और फिर फैसले पर अमल दरामद भी खुद कराए। तो मीडिया को हम इतनी बड़ा स्पेस क्यों देना चाहते हैं कि मीडिया हर चीज को कंट्रोल करने लगे और मीडिया ये कहे कि सदर मैं बनाऊंगा, वजीर आजम मैं बनाऊंगा, चीफ जस्टिस मैं बनाऊंगा, आर्मी चीफ मैं बनाऊंगा। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया का ये काम है। मीडिया अपनी हुदूद से जब तजावुज करेगा तो मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह से मेरा ख्याल ये है कि तमाम ब्रांचेस को अपना अपना काम करना चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है सही तरीके से जिम्मेदारी जो है निभानी चाहिए। सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।